timeline of the Delhi coaching basement flooding. There was heavy rainfall that started around 6 p.m. yesterday, after which the Delhi Fire Service received a call at 7 p.m. about students being stuck inside. By 6:30 p.m. to between 6:30 p.m. and 6:45 p.m., the Bada Bazaar road of Rajendra Nagar was waterlogged, post which the water gushed in, breaking a small door and glass windows of the basement. When rescue operations began, allegedly 10 to 12 students were still stuck. When water gushed in, allegedly 30 students were inside. Most climbed atop benches to save themselves. Rescue operations then ended at 4 a.m. in the morning today. In the night, and then 3 dead bodies were recovered. That's the latest breaking news that we're getting. We have a timeline of the events that took place from yesterday to today morning. Heavy rainfall started around 6 p.m. yesterday. Delhi Fire Service received a call at 7 p.m. about students being stuck inside. Between 6:30 p.m. and 6:45 p.m., the Bada Bazaar road of Rajendra Nagar was waterlogged, after which water gushed in, breaking the small door and glass windows of the basement. When rescue operations began, allegedly 10 to 12 students were stuck. But when the water gushed in, allegedly 30 students were inside, most of which climbed atop benches to save themselves. Rescue operations then ended at 4 a.m. and 3 dead bodies were then recovered. I'm being joined by my colleague Shreya Chachadi. Shreya, we have gotten access to the timeline of the events that took place that led to the death of three UPSC aspirants. Give us more details. Well, that's exactly what transpired here in the Rao Institute when water had gushed in and the students were still inside the very basement. Now, we are actually getting an understanding of the situation on the ground. What we are being told that one of the service lane gates, which you can see right now over here on your camera screens, these gates, it remained closed. That's precisely another reason why it was difficult for them to actually enter, leave the area. I'll ask my cameraman to actually get you the visuals of the building from behind, and you can understand that there were certain issues about the exit that also caused the problem of the students who were there inside the basement. They couldn't immediately come out because there was only one exit, and by the time the rescue operation started, because water had already piled in 10 to 12 feet above, is why these students got drowned. You can see the visuals on your screen. This is just behind the same institute. This is from where most of the rescue operations also took place. These visuals are something that we are getting the exclusive from backside of the Rao Institute right now. Remember, this is the basement below where the students got stuck, and we are also being told that one of the service lane gates, because it was shut, the students couldn't come outside. Right, Shreya, keep tracking that story. We'll come back to you for more details. We're getting some more breaking news coming in. We have some more breaking news coming in. We have the details of how the coaching basement got flooded. Delhi police has released a few theories. The first theory being that after heavy rains, gate of the coaching was closed. The coaching's gate was made of steel and it stopped the water from entering high water pressure, broke steel gate of the coaching center. The coaching's gate then broke and water entered the basement, after which the students got trapped. सुशांत मेहरा is joining us live on the story. सुशांत, अभी दिल्ली पुलिस ने हमें कुछ थियोरीज दी हैं कि बेसमेंट में पानी कैसे घुसा. आपके पास कोई क्लैरिटी है? प्लीज हमें दीजिए. देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार इस पूरी बेसमेंट में जहां ये पूरा हादसा हुआ इंस्टीट्यूट में, वहां पानी पहुंचा कैसे, क्योंकि सड़क का जो लेवल है और इंस्टीट्यूट के जो पार्किंग का लेवल है वो लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास का है. मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाए और तस्वीरों के जरिए आपको समझाएगा भी कि किस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ. ये सड़क है और उससे तकरीबन 2 से 2.5 फीट के आसपास का ये पूरा एरिया है जहाँ पर
पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर पार्किंग के अंदर एक आपको गेट, जो मेन गेट है इंस्टीट्यूट का, वो टूटा हुआ यहाँ पर नजर आएगा। दरअसल जब 6-6:30 बजे के आसपास बारिश हो रही थी और फायर विभाग को ये कॉल मिली कि अंदर की तरफ पानी बेसमेंट में काफी ज्यादा भरा हुआ है। दरअसल इस पूरे रोड से गाड़ियां जो है वो गुजर रही थी और गाड़ियों का जो रफ्तार थी उसके चलते यहाँ पर जो पानी था वो फ्लो, पानी इस तरीके से अंदर की तरफ धकेला और उसमें चलते जो ये लोहे का गेट था वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया और पानी बहुत तेजी के साथ पार्किंग एरिया के अंदर होते हुए बेसमेंट में जहाँ पहुंचा, जिसके कारण जहां स्टूडेंट्स, जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से 200 के आसपास बैठने की कैपेसिटी थी उन स्टूडेंट्स की, वहां पर पानी जो है वो तेजी के साथ बढ़ने लगा, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ। पानी को लोहे के गेट ने जो है वो रोक रखा था, जिसके कारण पानी रुका हुआ था। लेकिन जब गाड़ी यहाँ से फ्लो के साथ तेजी के साथ बढ़ने लगी, उसने गेट को जो है वो तोड़ा। उसके बाद पानी जो है वो बेसमेंट में जहाँ पे पहुंचने लगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पूरा इंस्टीट्यूट का हब है, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, तमाम आईएएस की तैयारी करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं। वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा नेग्लिजेंस जिन सरकारों का है उस पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आखिरकार ये स्टूडेंट्स क्यों सफर है, किन हालातों के अंदर ये स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, इसको देखते हुए तमाम यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो फिलहाल तैनात किया गया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका विरोध अब तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स भी जो है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो ये पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स आगे की तरफ ना आए, क्योंकि लोगों का गुस्सा, स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के हालात हैं उससे इसके स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करें, किन हालातों में पढ़ाई करते हैं। 10 बाई 10 के कमरे के अंदर 15 से 20 स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया जाता है और यहाँ पर तकरीबन जितने भी इंस्टीट्यूट्स अगर आपको नजर डालेंगे तो वहां पर जी सुशांत, तौर पर बेसमेंट्स। सुशांत हमारे साथ बने रहिए, वी कम बैक टू यू फॉर मोर डिटेल्स। Another civic apathy in the national capital. 3 lives were lost in a shocking incident of apathy at Rao's IAS coaching center. Delhi Mayor has now ordered action against coaching centers running from basement, which are in violation of building bylaws. In a horrifying incident, 3 students died after an IAS coaching center in Rajendra Nagar flooded after only a few hours of rainfall. Deceased have been identified as 28-year-old Nevin Dalwin from Kerala, 25-year-old Shreya Yadav from UP, and 25-year-old Tanya Soni from Telangana. 14 other students have been rescued so far. Students have intensified protest outside the coaching institute demanding justice. Meanwhile, Delhi Minister Atishi has initiated a magisterial inquiry. 2 people have been detained so far by the Delhi police. This is not the first time the incidents since monsoon began in the national capital. At least a dozen have lost their lives due to the monsoon mayhem and civic problems in Delhi. The question is, who is responsible for these deaths? देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और 1 लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक वायर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी तुरंत जो है जमा होता है, कोई जो है यहाँ पे जो है इतनी सुनवाई नहीं होती। कंप्लेंट किया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से यहाँ पे जो कोचिंग माफिया हैं वो यहाँ पे कोई किसी तरह का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जो कल कैजुअलिटी हुई है वो 30+ कैजुअलिटी हुई है, बट ऑफिशियली 3 जो है दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठा है। क्योंकि हम लोग वहीं पे मौजूदा उसी पे खड़े थे, वहाँ पे जो है गाड़ी भर भर के जा रही थी और उस गाड़ी को जो है ब्लैक पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें जो है ब्लैक पन्नी लगाकर उसे भेजा जा रहा था। बिजली विभाग का यहाँ पर कोई इतना खास कोऑपरेशन नहीं है। आप वहाँ से लेके अंदर बिल्कुल मेन गोल चक्कर तक जाएंगे या आगे तक भी जाएंगे वाटर टैंक तक, तो आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीपल पोल्स
वहाँ पे नंगी तारे हैं और बंच में है, हेविली डेंस्ड वायर्ड एरिया है ये, और यहाँ पे खुली तारें पानी में तैर रही होती है या मेटल के गेट के साथ अटैच्ड होती है। तो इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ये सारी चीजें तो सुपरफिशियल लोगों को दिखती नहीं है जब तक इतने बड़े कांड नहीं हो जाते। ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स का यही हाल है। स्टूडेंट्स की लाइफ एवरी टाइम एवरी सेकंड इट्स ऑन अ रिस्क। अभी इतना सब केस हो गया है, एमसीडी का कोई बड़ा ऑफिशियल यहाँ नहीं आया है अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितना डेथ हुआ है, कितना कैजुअलिटी हुआ है। क्या लाइफ मैटर नहीं करती है बच्चों की? आप हमें एग्जैक्ट नंबर तक नहीं दे पा रहे हैं, कैसे काम चलाएंगे आप लोग? डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को रिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को रिटेन किया। Sir, what was the total number of the persons trapped when the incident took place? We found 3 bodies in the basement library and as I told you बाकी लोगों को हमने अलग अलग बिल्डिंग के अलग पार्ट से रेस्क्यू किया है। दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। इस बिल्डिंग के बाहर से कोई सीवर या ड्रेन है जो फट गया है, जो एक तरह से फ्लैश फ्लड की तरह जो बेसमेंट में पानी भर गया, और अभी रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। अभी कुछ बता रहे हैं 1 या 2 जो हैं बच्चों की कैजुअलिटी भी बताई जा रही है, बट बहुत ही दुखद घटना है ये। और मैं पूरा आश्वासन देती हूँ फैमिलीज को भी कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई है और एमसीडी का जो भी अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा, और हमारा प्रयास रहेगा आगे से कोई भी ऐसी घटना ना हो। मशीनें एमसीडी ने लगा दी हैं सारी। हाँ। पानी निकालने का काम चालू है जी। अच्छा, अभी कोई अंदर फंसे होने की आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं। हम नीचे तक घूम के आए हैं और बिल्डिंग बिल्कुल टोटली खाली है। बेसमेंट खाली है? बेसमेंट बिल्कुल खाली है। अभी कितना समय लग जाएगा इसको पूरा कंप्लीट होने में? नहीं, कंप्लीट है अब तो। पानी निकल चुका है? हाँ, पानी निकल चुका है। 2-4 इंच रहता है, वो निकल जाएगा। We're going to go back to my colleague Sushant Mehra, who's tracking the story. Sushant, दिल्ली पुलिस की थियरी है कि पानी के हाई प्रेशर की वजह से स्टील गेट टूट गया था, जिसकी वजह से पानी अंदर चला गया और बेसमेंट फ्लड हो गया। हमें और डिटेल्स दीजिए प्लीज। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। पुलिस और फायर के मुताबिक जब ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि सबसे पहले कॉल जो जाती है इस तरीके के हादसे में, वो सबसे पहले फायर के पास पहुंची थी। फायर की टीमें लगभग 7 बजे के आसपास पहुंची और उनके पास एक कॉल आई थी। वो कॉल ये थी कि बेसमेंट के अंदर पानी जो है वो भर गया है काफी ज्यादा और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन जब फायर की टीम पहुंची तो पूरी बेसमेंट के अंदर पानी लबालब था और उन्हें ये नहीं पता था कि आखिरकार स्टूडेंट्स जो है वो कहां पर और किस जगह पर फंसे हुए हैं। और जितना भी पानी था, क्योंकि सड़क पर भी पानी था, सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो और भी अभी भी पानी जो है वो कहीं हद तक जमा हुआ है। और जिस वक्त पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी पंप के जरिए, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पानी जैसे ही वो बाहर निकालते थे तो पानी का फ्लो वापस बैक मार के बेसमेंट की तरफ जाता था, जिसके कारण फायर को काफी घंटे तक इस तरीके की परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। बड़े बड़े पंप्स जो है वो लगाए गए, एमसीडी की टीमों के जरिए पूरी हेल्प ली गई। उसके बाद एक एक करके जब पानी का फ्लो कम हुआ, उसके बाद ही एक के बाद एक जो स्टूडेंट्स की बॉडीज हैं उनको बाहर निकाला गया।